So hello everyone and welcome back to the new class. I am Shubdeep Datta. I am your chemistry educator at Unacademy. So guys, we are at the top 100 ranks MST CET 2021 and here we go. So welcome to the target top 100 ranks MST CET 2021. I am Shubdeep Datta. You can see the timings here. For the maths timing is from 10 a.m. then again at 8 p.m. Chemistry is 1 p.m. then and again at 9 p.m. Biology at 11 a.m. then again at 7 p.m. and physics at 9 a.m. then again at 6 p.m. Right? The preparation will go on from Monday to Sunday, the full preparation and the daily life classes. Let me give you a little brief about myself. I am Shubdeep Datta and I am an alumni of National Institute of Technology, Durgapur. I have some 5 plus years of teaching experience for chemistry and I teach for IIT JEE and NEET along with various state entrance examinations such as the Maharashtra Common Entrance Test, right? Okay, so as you might already know that crack Maharashtra CET or the Unacademy is now the India's largest e-learning platform, and if you get the plus subscription for the Unacademy you can get access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. So guys, please hurry up and subscribe to the Unacademy today, not tomorrow but today, right? The first step towards your learning at Unacademy is to download the Unacademy learning app. If you download the Unacademy learning app, what you will do is you will already take the first step towards your learning and towards your achieving the goal, right? You should also download the Telegram app from the Google Play Store. Why? Because after downloading the app you can get the updates on the video description by typing crack Maharashtra CET once you download the Telegram app from the Google Play Store, and then you have to click the join button. Okay, so these are the subscription plans. 1 month subscription plan is for 2700 rupees and for 24 months it is 21,600 rupees, right? So for 24 months it is 21,600 rupees, which means that you have to only pay 900 rupees per month. And on top of that, if you have this thing Shubdeep, which is your referral code, right? If you use this referral code, then you will get a flat 10% discount. So please use this code to avail the discount, and if you take the discount, then it will be a less financial strain on your side. So please use this code Shubdeep. This is my name as well as your referral code. Please use this code in order to get the 10% extra discount, right? Which means that if you have taken this plan in which you would have paid 21,600, then now you have to only pay 21,600 minus 2160, right? Minus 2160. Okay, so yeah, let's just begin with our topic we were doing. Alkenes and alkynes, right? Naming of alkenes and alkynes. Okay, सी हम लोग एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं याद दिला दूं जो हमारी स्कीम थी वो क्या थी। स्कीम में सबसे पहले आपके पास एक सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद एक प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा,
उसके बाद एक आएगा रूट वर्ड, और उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स, और नेक्स्ट इज एक सेकेंडरी सफिक्स, राइट। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, ठीक है। साइड सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपके साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो, ये जितनी भी एंटिटीज़ हैं ये आती है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स आपका स्किप हो जाएगा। अगर रूट वर्ड की बात करें तो कार्बन चेन मतलब पेरेंट चेन के बेसिस पर हम लोग देखते हैं, अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन। इस तरह से आपका डिवीजन रहेगा। प्राइमरी सफिक्स की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी सफिक्स में आपका सैचुरेशन आएगा या तो अनसैचुरेशन आएगा, राइट। सैचुरेशन या अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि आपका सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ करेंगे एल्केन्स के लिए, अगर डबल बॉन्ड है तो इन यूज़ करेंगे एल्कीन्स के लिए, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज़ करेंगे एल्काइंस के लिए, राइट। सेकेंडरी सफिक्स में आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आपका OH है तो वो एक एल्कोहल कहलाएगा, वो कंपाउंड पूरा एक एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है ना। CHO है तो अल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक है ना। COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो यही स्कीम हर जगह यूज़ होगी, इवन एल्कीन्स और एल्काइंस में भी यही सेम स्कीम यूज़ होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल बस हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, एल्कीन और एल्काइन में हम चाह कर मतलब अभी हम लोग केवल क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को अभी हम लोग बाद दे देते हैं, मतलब हम ऐसे एग्जाम्पल्स ही देख रहे हैं जहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। हो सकता है कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट हो और वहाँ पर साइक्लो बाईसाइक्लो भी नहीं होगा, मतलब अभी आपके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमेशा यहाँ पे हमें ट्राई करना है टू गिव लीस्ट नंबर टू अ डबल बॉन्ड, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास CH2 है तो देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो अभी इसमें कोई है नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और अगर कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पाइरो है, ये तो एक ओपन चेन कंपाउंड है, यहाँ पे साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पाइरो जैसा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो आपका रूट वर्ड से स्टार्ट होगा नेमिंग। रूट वर्ड में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है तो एक को 1 दे दीजिए, एक को 2 दे दीजिए, ठीक है। तो रूट वर्ड में पेरेंट चेन जो है वो 2 कार्बन का है, तो H तो आपका क्लियर हो गया। प्राइमरी सफिक्स में अनसैचुरेशन या सैचुरेशन आता है, एन, इन या आइन, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है तो हम इन यूज़ कर लेंगे, तो एथ इन, दिस इज़ द नेम गाइस। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, केवल क्या है रूट वर्ड से लेके प्राइमरी सफिक्स तक, सही है। तो यहाँ पर कितना है, हम देखो इसको नेमिंग नंबरिंग ऐसे दे सकते हैं 1 2 3 एंड 4, या तो ऐसे दे सकते हैं 1 2 3 या 4। ध्यान रखना लीस्ट नंबर हमें किसको देना है, डबल बॉन्ड को, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में हम नेम को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 4 आपके पास पेरेंट चेन में कार्बन है, तो 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया ब्यूट, और यहाँ पे इन है डबल बॉन्ड। जब आपका इन है तो ये सिंगल बॉन्ड की नेमिंग को हम नहीं देखेंगे, हम केवल इन लगाएंगे इसके आगे, क्या है ब्यूट इन, ठीक है ना। अब देखो एक ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कार्बन डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर हो 4,
ठीक है, तो फिर से हम यही करेंगे। अब देखो, चाहे आप यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, या तो यहाँ से कर दो 1 2 3 एंड 4, आपका जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में ही है। जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के ही बीच में है, ठीक है ना। तो पहली बात, आपका जो रूट वर्ड है वो तो ब्यूट आपका तय है पहले से ही, लेकिन जो आपका इन है, मतलब जो डबल बॉन्ड है, वो 2 पोजीशन पर है, क्योंकि सबसे लीस्ट जो वैल्यू है इन चारों में 2 3 3 2 में, वो 2 नंबर ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 इन, ठीक है ना। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है ना, तो हम लोग चाहे यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से नंबरिंग करें, एक आपको डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में मिलेगा, दूसरा डबल बॉन्ड आपको थर्ड पोजीशन में मिलेगा। तो हम चाहे जिधर से भी ले ले, इधर से ले लेते हैं, चलो। तो पहली बात, यहाँ पर भी रूट वर्ड से लेके प्राइमरी सफिक्स तक ही नाम होगा। टोटल कार्बन 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, है ना। डबल बॉन्ड 2 हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 1,3 पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3 पे 2 डबल बॉन्ड है ना, एक 1 पर और एक 3 पर। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, डाई इन। तो ब्यूट नहीं लगाएंगे, ब्यूटा लगाएंगे, ठीक है ना। ब्यूटा 1,3 डाई इन। क्या समझ में आया ये चीज़, ठीक है ना। ब्यूटा लगाते हैं, ब्यूट नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इस तरह का ले लेते हैं, इस तरह का। तो देखो, डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तभी मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो 1 और 2 पर डबल बॉन्ड है, 1 पे ये वाला डबल बॉन्ड है, 2 पर ये वाला डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड इज पेंट है, पेंट। और यहाँ पर 1,2 डाई इन, तो 1,2 से पहले डैश लगा दिए, यहाँ पे कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं आना चाहिए। तो दिस इज द थिंग गाइज, पेंट 1,2 डाई इन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेसिकली रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, इतना ही नाम अभी फ़िलहाल हमें देना है, क्योंकि बाकी चीज़ें अभी हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये देख लो, इसका नाम क्या होगा बताओ ज़रा, सोच समझ के इसका नाम डिसाइड करें, सोच समझ के इसका नाम डिसाइड करें। यहाँ पर नंबरिंग हम किसी भी तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना। तो 1, दूसरा कार्बन है ये 2, तीसरा कार्बन है इस डायरेक्शन में, इस चेन को लेना है, इस कार्बन को थर्ड नंबर पे, और यहाँ के एंड में जो कार्बन है वो फोर्थ कार्बन है। हमने इस तरह से चेन को सेलेक्ट किया है। हम ऐसे भी तो कर सकते थे 1 2 3 4, ऐसे क्यों नहीं किया, हमने किया 1 2 3 एंड 4, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारा पेरेंट चेन का पार्ट बन जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारे पेरेंट चेन का पार्ट बन जाए, इसीलिए 1 2 3 एंड 4। तो 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक साइड सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे बेसिकली हमें सेकेंडरी सफिक्स का काम, प्रीफिक्स का काम पड़ेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो बाईसाइक्लो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उसका काम नहीं पड़ेगा। अभी हमें यहाँ पे केवल 3 चीज़ों का काम पड़ रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स, राइट। तो यहाँ पर देखो, एक मिथाइल ग्रुप है सेकेंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे एक और मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ही भरा जाएगा। तो यहाँ पर 2,3 पर मिथाइल है, 2 जगह पे मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, ठीक है ना। प्रीफिक्स का काम हो गया, 2,3 डाई मिथाइल। अब आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड के लिए 1 2 3 एंड 4, रूट वर्ड हमेशा पेरेंट चेन से आइडेंटिफाई होता है। तो पेरेंट चेन में रूट वर्ड कितना है, 1 2 3 एंड 4, तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका ब्यूट,
और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 में 1 पे है और 3 पर है, तो 1,3 डाईईन। क्या ये बात समझ में आया? ब्यूट 1,3 डाईईन। एक बात का ध्यान रखना, ये ब्यूट नहीं है, ब्यूटा है। ब्यूटा 1,3 डाईईन। क्या ये बात क्लियर है सभी को? है ना? देखो अभी तक आप क्या करते आए हो, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप पेरेंट चेन मानते हुए आए हो, लेकिन देखो कहाँ पे ये नहीं होगा, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन है, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या करूँ, 1 2 3 4 एक छोटी चेन में जाऊँ, और हमारे पास एक ऑप्शन है 1 2 3 4 5 एक बड़ी चेन में जाऊँ। मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए एक बड़ी चेन में कि एक छोटी चेन में? छोटी चेन में ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जा रहे हैं, बड़ी चेन में कार्बन ज़्यादा आ जा रहे हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पर मैक्सिमम डबल बॉन्ड है ना, मैक्सिमम डबल बॉन्ड है ना, उसको हमें पेरेंट चेन मानना चाहिए, मतलब 1 2 3 4। अब देखो यहाँ से भी 1 2 3 4 करते तो भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता 1 2 3 और 4, ये भी ऑप्शन रहता। हमने लेकिन लेना कौन सा है? 1 2 है ना, उसके बाद 3, मतलब 1 2 उसके बाद 3 एंड 4, ये वाला ऑप्शन लेना है। यहाँ से ये चलते हुए ऑप्शन लेना है। वाई? क्योंकि ऐसे जाने पर हमें ये जो साइड सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, इसको लीस्ट नंबरिंग देना पड़ रहा है। ये साइड सब्स्टिट्यूएंट जो बन गया, इसको लीस्ट नंबरिंग देना पड़ रहा है। देखो ये क्या है, ये 3 कार्बन में एक हाइड्रोजन हटाया हुआ, तो ये बेसिकली प्रोपाइल ग्रुप है। क्या ग्रुप है? प्रोपाइल। ठीक है ना? प्रोपाइल अगर ऐसे जा रहे हैं तो सेकेंड नंबर पे प्रोफाइल है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे प्रोपाइल है, तो 2 प्रोपाइल पहले लिख दिया। क्यों पहले लिख दिया? क्योंकि हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले लिखना है, तो 2 प्रोपाइल पहले लिख दिया। उसके बाद क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड में टोटल 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब ब्यूटा। 2 डबल बॉन्ड है, एक है 1 पे और एक है 3 पे, 1 2 3 है ना, तो 1,3 डाईईन। क्या इस तरह से लिखा जाएगा? 2 प्रोपाइल ब्यूटा 1,3 डाईईन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक और केस करा देता हूँ, चलिए। जैसे कि इस तरह का एक केस ले लेते हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो क्या है, 1 2 3 4 5, या तो 1 2 3 4 5। अभी क्या करोगे? अभी आपको किसी एक तरफ नंबरिंग करना पड़ेगा, दोनों तरफ चेन लेंथ तो सेम है, तो 1 2 3 4 एंड 5, या तो 1 2 3 करते तो भी बात सेम रहता, तब भी कोई दिक्कत ना होता, है ना। या तो ऐसे भी ले सकते हो, या तो इसको साइड सब्स्टिट्यूएंट मान लो, या 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हो। तो 3 नंबर पे आपका ये जो है वो साइड सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। साइड सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमेशा सोचा करो कि अगर केवल ऐसा होता कि कोई भी हाइड्रोजन जो है वो हटा के इसको बॉन्ड से जोड़ा ना जाता, एक हाइड्रोजन हटाओगे एक बॉन्ड खाली हो जाएगा ना, और एक बॉन्ड अगर खाली हो जाएगा वो यहाँ से आके जुड़ जाएगा। तो ऐसा अगर ना होता तो यहाँ पर इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथीन। ठीक है, तो अब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH कर देते, एक बॉन्ड खाली छोड़ देते। अब ये बॉन्ड जो है वो किसी भी मेन ग्रुप से, जैसे कि ये वाला ग्रुप है, इससे जाके जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हमेशा आइल लगा दिया जाता है, जैसे कि एल्काइल था वैसे इथीन है ना, तो इथीनाइल हो जाएगा, इथीनाइल। तो ये एनी हट जाएगा और नाइल हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इथीन होता ना तो इथी तक बने रहने दे, उसके बाद आइल लगा दे, तो इथीनाइल हो गया। इतना समझ में आता है। तो इथीनाइल एक साइड सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरे नंबर पे है। तो
तो सबसे पहले साइड सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा 3 इथेनाइल। उसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 पेंटा 1,4, ठीक है, डाइइन, ये पूरा नाम हो गया इसका। क्या बच्चों ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही आसान चीज़ थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। ठीक है, यहाँ से टेक अवे क्या है? टेक अवे मतलब ऐसी कौन सी नॉलेज है जो तुम यहाँ से ले जाना चाहते हो। यहाँ आपको टेक अवे जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर मान लीजिए एक एल्केन था CH3 है ना, तो इसको अगर इथेन बोलेंगे तो एक अगर CH3 में से एक H हटा दें और इसको बाकी आगे जोड़ने के लिए छोड़ दें तो इसको इथाइल बोलेंगे, ठीक है ना। वहीं पे अगर इथीन होगा तो एक हाइड्रोजन अगर हटा देते हैं और इसको आगे जोड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो इसको इथेनाइल बोलेंगे, ठीक है ना। बस आई लगा देना है अगर एक हाइड्रोजन हटता है तो, ठीक है। चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास ये होता CH3CH और यहाँ पे क्या होता है CH, इसको क्या लेते हैं, ये साइड सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? जहाँ से ये जुड़ता है ना हमेशा उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है। साइड सब्स्टिट्यूएंट के लिए नॉर्मल नोमेनक्लेचर के आइडियाज़ काम नहीं करते हैं। साइड सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमेशा ध्यान रखना जहाँ से आपने बॉन्ड को आगे के लिए छोड़ा है ना किसी से जुड़ने के लिए, हमेशा उस बॉन्ड को पहला नंबर दिया जाता है। तो ये इस बॉन्ड के बाद में ये कार्बन है पहला, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, तो 1 2 3 बाकी सारे केसेस सेम रहते हैं, बाकी सारे नियम कानून सेम रहते हैं, बट ये चेंज हो जाता है कि जो प्रेफरेंस में सबसे बड़ा होगा उसको पहले दिखा जाएगा। नहीं, जहाँ से भी ये ग्रुप जुड़ा हुआ है साइड सब्स्टिट्यूएंट का उसके बगल वाले को हमेशा फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस दी जाती है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, तो ये 1 है, 2 है, 3 है। तो 3 का मतलब रूट वर्ड क्या हो गया? 3 का मतलब हो गया एथ, है ना। ईन है तो एथीनाइल, सॉरी 3 का मतलब एथीन कहाँ हो गया? 3 का मतलब हो गया प्रोपीनाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। 1 लगा दो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो CH2 होता, डबल बॉन्ड होता, CH होता और यहाँ पर CH2 होता और यहाँ पे साइड सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और यहाँ पर साइड सब्स्टिट्यूएंट आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो तब यहाँ पे इस साइड चेन का नाम होता आपका 1। हमेशा जुड़े हुए चीज़ को, ये नॉर्मल नोमेनक्लेचर तो है नहीं, नॉर्मल नोमेनक्लेचर में आपका पूरा कंपाउंड होता है, ठीक है। ये आपका एक साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ सकता है ना। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, तो 1 2 एंड 3। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे इसको 1 देना ही देना है, 2 है, 3 है, नंबरिंग में यहाँ पे फिक्स पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिलेंगी उस तरफ से देंगे, नहीं, वो होता है नॉर्मल नोमेनक्लेचर में जब आपका पूरा पेरेंट चेन डिसाइड होता है। ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, ये क्या है, साइड सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है। तो 1 2 एंड 3, तो 2 पे इन है ना, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है 2 प्रोपीनाइल, ठीक है ना। और इसको हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। कभी भी नॉर्मल अगर कोई केस ना हो, साइड सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए या कोई डबल बॉन्ड आ जाए या कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, उसको नॉर्मल साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोला जाता। तो कॉम्प्लेक्स को हमेशा इस डबल ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है ना। चलो इसका एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन 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 कार्बन,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक और कार्बन है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया है, एक और कार्बन क्या है, यहाँ पे इसी को एंड मान लेते हैं। यहाँ पे क्या किया है आपने, इस सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3। एक सेकेंड, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये यहाँ से जुड़ा है ना, तो इसको जोड़ देते हैं, CH2, उसके बाद क्या है, CH है, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है, CH2 है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से नंबरिंग दे या यहाँ से नंबरिंग दे, इन दोनों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट साइड सब्स्टिट्यूएंट को हमें मिनिमम देना है। ये एक साइड सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, और इस साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, 2-प्रोपीनाइल, 2-प्रोपीनाइल इसका नाम है, ठीक है ना। अब इधर से जाएं या इधर से जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए जाते हैं। चलिए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया आपका 10। तो ये है 2-प्रोपीनाइल, राइट। ये है आपका 2-प्रोपीनाइल, ओके। इधर से जाए इधर से जाए, तो देखे जरा, साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 2-प्रोपीनाइल। उसके बाद क्या है, 10 है ना, तो 10 का मतलब डेका 1,9 डाईइन, ये इसका नाम हो जाएगा टोटल, ठीक है। देखिए, रूट प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसमें फॉलो किया गया है। जो नहीं था उसको नहीं लिखा है ना। और कॉम्प्लेक्स लेते हैं थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, 10 का ही ले लेते हैं, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स थोड़ा चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे आपका ये जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा डबल बॉन्ड ले लेते हैं और एक ऐसा डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब इतने से हिस्से को हम बाहर निकाल लेते हैं, अलग लिख लेते हैं। अलग लिखने पर यहाँ से जुड़ा हुआ है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, फिर से कार्बन है, ठीक है ना। तो हमेशा जहाँ से जुड़ा है ना, क्योंकि ये मेन पेरेंट चेन का पार्ट तो है नहीं, ये जहाँ से जुड़ा हुआ है ना, इसको 1 नंबर देना है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। चलिए आगे एक और जोड़ देते हैं, है ना। तो ये पूरा साइड सब्स्टिट्यूएंट हो गया, आगे एक और जोड़ दिया, तो 1 2 3 है। तो हमेशा देखना जहाँ पे डाई या ट्राई आए ना, तो आप वहाँ पे डाई या ट्राई यूज़ कर लेकर। एक सेकेंड है। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो 4 का मतलब ब्यूट है ना। उसके बाद 1 पे है और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा 1,2 डाईइनाइल, ऐसा लिख देंगे कि नहीं। ये साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, इसका मतलब इसका। बाकी नेमिंग करने में तो वही है। अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स तो है, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, मतलब साइक्लो बाईसाइक्लो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, एक आपके पास रूट वर्ड है,
और उसके बाद क्या है, प्राइमरी, नहीं, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स भी तो नहीं है, ठीक है ना। तो लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स तो हमने लिख ही लिया है, ब्रैकेट में ब्यूटा 1,2 डाई इनाइल, उसके बाद रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड है यहाँ पर 10 का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 1,9 ब्यूटा 1,9 डाई इन, ये पूरा इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फंडा पता है तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। चलो इतना हो गया, इतना हो गया। अब चलिए ट्रिपल बॉन्ड पर आते हैं, चलिए अब ट्रिपल बॉन्ड पर आते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिमिलरली है, एकदम एकदम एक जैसा, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो रूट वर्ड क्या है, एथ है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, तो एथाइन नाम हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इस तरह का है कोई ट्रिपल बॉन्ड इस तरह का, तो 1 2 3 हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 का मतलब प्रोप, और यहाँ पे आइन, ठीक है। उसके बाद एक और ले लेते हैं 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड सी, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 का मतलब ब्यूट, ब्यूटा नहीं, ब्यूट नहीं, हाँ, ब्यूटाइन नाम हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग 1 2 3 4 कर देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बीच में दे देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट टू आइन, ये नाम हो जाएगा इसका। अगर मान लीजिए बॉन्ड लाइन नोटेशन पे हम ऐसे इसको शो करें, तो जहाँ पे ये बॉन्ड एंड हो रहे हैं मतलब वहाँ पे कार्बन है, और जो एंड है वहाँ पर तो कार्बन है ही, तो 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, ये ऊपर वाला और ये सेम है, तो यही इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जहाँ पर भी आपका ट्रिपल बॉन्ड आए और डबल बॉन्ड एक साथ आए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ले लिया, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो देखो क्या होने वाला है इससे, क्या होने वाला है इससे कि आपने जब नंबरिंग करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। एक्चुअली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा जो अहमियत होती है ना, वो दो तरह से होती है कि किसको शॉर्ट नंबर दिया जाए, किसको छोटा नंबर दिया जाए, है ना। तो जब नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहे होंगे, जैसे यहाँ से 2 है और यहाँ से अगर करेंगे तो डबल बॉन्ड को लीस्ट जो है वो 3 नंबर मिल रहा है, तो 2 नंबर छोटा है कि 3 नंबर छोटा है, 2 नंबर ज़्यादा छोटा है, तो इस तरफ से हम लोग इसको नोमेनक्लेचर में इंक्लूड करेंगे, ये पेरेंट चेन हम इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 7 का मतलब होता है हेक्स, ठीक है ना, हेक्स, ठीक है। और 2 का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और 2 पर है ट्रिपल बॉन्ड और 4 पर है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को पहले लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड को आपका पहले लिखा जाएगा। तो पहले लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 4 नंबर पे है ना डबल बॉन्ड, तो 4 इन, और उसके बाद 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, तो हेक्स 4 इन 2 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और करते हैं, अगर मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों को प्रेफरेंस वाइज
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को 4 मिल रहा है, डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से डबल बॉन्ड जो है उसको 2 मिल रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, और डबल बॉन्ड को 4 मिल रहा है। तो अगर हम लोग चूज़ करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, जब दोनों को शॉर्ट नंबर जो है वो 2 मिल सकता है, तो हम लोग हमेशा प्रेफर किसको करेंगे? डबल बॉन्ड को करेंगे। इसका मतलब, इसी को मैं फिर से बना लेता हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये है, तो हमें हमेशा वहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए जहाँ से डबल बॉन्ड को आपका ज़्यादा प्रेफरेंस मिले। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है 6, तो डबल सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। इस बात का आप लोग ख्याल रखना। अब इसका नाम कर लेते हैं। तो रूट वर्ड कितना है? 6 का मतलब हेक्स है ना। सेकेंड पे इन आना है तो 2 इन 4 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी भी डबल बॉन्ड को भी आप सेम प्रेफरेंस दे सकते हो, जब कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सेम नंबरिंग हम चूज़ करना चाहें तो प्रेफर हम किसको करेंगे? जिस तरफ से आपका डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है? और एक और बात बता देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है ना, तो इसको आप 1 2 3 4, तो इसको आप ब्यूटा 1,3 डाइईन तो लिखते हो, बट इसको आप केवल ये भी लिख सकते हो, ब्यूटा डाइईन, केवल ये भी लिख सकते हो। वाई? क्योंकि अगर 4 कार्बन का 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन का चेन है और उसमें 2 इन लगाने हैं अलग अलग जगह पर, है ना, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे आपने लगाया ना, 2 इन लगाने हैं, सॉरी 2 इन लगाने में तो एक और आ जाएगा ना। चलिए एक सेकंड में, इसमें थोड़ा वो हो गया, चलिए दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, तब बढ़िया बैठेगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ट्रिपल बॉन्ड मैंने ले लिया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस मिलेगा। तो डबल बॉन्ड को हम पहला प्रेफरेंस दे देते हैं 1 2। मैंने अभी बताया था ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर प्रेफरेंस सेम है, मतलब शॉर्ट नंबर दोनों का सेम है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरह से हम गए, इस तरह से हम गए। तो यहाँ पे हमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ब्यूटा नहीं, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटी 9, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने 1 और 3 लगाया ही नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 में अगर कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, अगर उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड देना है ना, तो इसके अलावा और कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ पर भी दूसरा कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर ना बन पाए, तो वहाँ पे बेसिकली इस 1 और 3 का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर ब्यूटीन और आइन दोनों एक साथ लगाना है 4 कार्बन पे, तो आप इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। इसीलिए जहाँ पे कोई दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ना हो ना, तो वहाँ पे लोकेंट्स दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं वो सीख लिया। अगले टर्न पे हम लोग क्या सीखेंगे? साइक्लो एल्केन्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।
तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. Thank you everyone, and please subscribe to the channel. The channel name is Crack Maharashtra CET. I am Shubdeep Datta, and you can also use this code to get the extra 10% discount. Okay, whatever is your fees, you will get a 10% flat discount from the Unacademy and from my side. Okay, so please बच्चों YouTube पे कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, और इनफैक्ट आपको अगर कोई चीज़ की कमी लगती है तो उसका भी कमेंट करें. साथ ही साथ प्लीज़ आप बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि एवरी टाइम हम लोग कोई नया वीडियो बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन जाए, और नोटिफिकेशन अगर आपके पास जाएगी तो आप क्लास मिस नहीं करेंगे. राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन. आई एम साइनिंग ऑफ.